Hello students, today we are going to start the lesson My Childhood, and I want to give you the introduction of this lesson, and I will also tell you about the story of this lesson in brief. The name of the lesson is My Childhood and it is written by APJ Abdul Kalam. You all know about Dr. APJ Abdul Kalam. He was the former president of India and he was a scientist also. Okay, let us come to know about the author. The author is APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was born on October 15, 1931 in Rameshwaram, India, and he died on July 27, 2015 in Shillong. We know all this. He was an Indian scientist who played a leading role in the development of India's missiles and nuclear weapon programs. He was the first president of India, he was the president of India from 2002 to 2007. Kalam wrote several books, including an autobiography, Wings of Fire. You should know, Wings of Fire was the name of Abdul Kalam's autobiography, and it was written in 1999. Among his numerous awards were two of the country's highest honors. बहुत सारे awards मिले, लेकिन country के two highest awards भी उनको मिले थे, and these were the Padma Vibhushan in 1990 and the Bharat Ratna in 1997. Now the introduction of the story of this lesson. This chapter has been taken from Professor APJ Abdul Kalam's autobiography, Wings of Fire. The extract is mainly about the reminiscences of his childhood. Reminiscences means यादें, reminiscences memories. Okay, अपने childhood की memories के बारे में लिखता है इस lesson में. He talks about his parents, his childhood friends and his experiences at school. अपने parents के बारे में, अपने childhood experiences के बारे में और अपने childhood friends के बारे में लिखता है. He grew up in a traditional society where in spite of different religions, people lived in peace and harmony. Different religions थे उस टाइम में, बट फिर भी लोग पीस और हार्मनी के साथ, मेल जोल के साथ रहते थे. Anyone who attempted to break the communal harmony was reprimanded by the society. और सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस थी कि अगर कोई कम्युनल हार्मनी को ब्रेक करने की ट्राई भी करता था तो सोसाइटी के लोग अपने आप ही उसको रिप्रिमांडेड मीन्स प्रताड़ित करना, उनको भला बुरा कहते थे, अच्छी खरी खोटी सुनाते थे, रिप्रिमांड करते थे. ओके, कम टू द समरी. Kalam's family and home. In this chapter, Abdul Kalam tells about his family and about his home. He tells that he was born in a town of Rameshwaram and his father's name was Jainul Abdin and his mother's name was Ashi Amma. Though Kalam's father was not educated or rich, but he was wise and genius. Abdul Kalam tells कि उसके फादर बेशक इतने रिच और एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते थे और एक्सपेंसेस जो हैं, एक्स्ट्रा वैगन्स जो है, फिजूल खर्ची पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ उनको मिली हुई थी. अब्दुल कलाम अपने घर के बारे में बताते हैं. अपने 3 ब्रदर्स और 1 सिस्टर थी, उनकी अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं. देन दे लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस. एंसेस्ट्रल मीन्स पुरखों के घर में, जो पूर्वजों का घर था, उसके दादा परदादा का घर था, उसी में रहते थे. मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम में जगह का नाम है मॉस्क स्ट्रीट, वहां पर वो घर था और इट वॉज अ पक्का हाउस था, ये सीमेंटेड हाउस था. हिज फादर बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग, सो ही अवॉइडेड ऑल लग्जरीज, बट however the house had all things of daily necessities. लग्जरीज नहीं थी, सुख सुविधाएं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि बेसिक फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड की जाती थी.
Then he tells about his first earning. Abdul Kalam was 8 years old when the Second World War broke out. और इस स्टोरी में बताया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में पता नहीं क्या रीज़न था कि मार्केट में इमली के बीज जो होते हैं, टैमरिंड सीड्स, उनकी डिमांड बढ़ गई थी और विलेजेस में तो इमली के पेड़ लगे होते हैं, तो वहाँ पर भी इनके जो एंसेस्ट्रल टाउन था, छोटा सा टाउन था वो, वहाँ भी इमली के पेड़ थे। तो अब्दुल कलाम अब वहाँ से इमली तोड़ के उसके बीजों को कलेक्ट करके और मार्केट में बेच देते थे और उस टाइम उनको एक आना मिल जाता था उन इमली के बीजों को बेचने से, और ये उनकी फर्स्ट अर्निंग थी। एक आना उनके लिए एक प्रिंसली कलेक्शन हुआ करती थी। ओके, जैसे एक राजकुमार को पैसे मिल गए हों। देन ही टेल्स अबाउट हिज कजन शमसुद्दीन। अपने कजन शमसुद्दीन के साथ वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे रामेश्वरम में। शमसुद्दीन को हेल्प की ज़रूरत थी और उन्होंने हेल्प के लिए अपने कज़न अब्दुल कलाम को अपने साथ लगा लिया और इस तरह से अब्दुल कलाम को एक और काम मिल गया था और इसके बदले में उसको कुछ पैसे भी मिलते थे। इट वॉज हिज फर्स्ट अर्निंग। Then Abdul Kalam tells about Hindu-Muslim harmony in the society. Abdul Kalam was greatly influenced by his parents. He learned honesty and self-discipline from his father and inherited goodness and kindness from his mother. Parents से कौन कौन सी क्वालिटीज मिली? Honesty and self-discipline father से मिला और inherited means उन्होंने प्राप्त किया, ओके, अपनी मदर से गुडनेस एंड काइंडनेस, अच्छाई और दया की भावना अपनी मदर से प्राप्त की। ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड। दे वर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। 3 फ्रेंड्स थे और तीनों ही ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो कट्टर होते हैं, अपने धर्म को, अपने मजहब को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही स्ट्रिक्टली उसके रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट हिंदूज थे, ब्राह्मण थे और ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये तीनों उनके फ्रेंड्स थे। As children, they never felt any religious difference among themselves during the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony. Kalam's family arranged boats for carrying idols of the Lord. तो इन बच्चों को अपने बचपन में, जब ये स्कूल में पढ़ते थे या बचपन में, इस तरह की कोई इनको डिफरेंस नज़र नहीं आया, ना इनको पता चला कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है। और जब हर साल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी होती थी, श्री सीताराम जी की विवाह का समारोह मनाया जाता था, तो अब्दुल कलाम जो कि एक मुस्लिम थे, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स अपनी बोट्स में राम और सीता की प्रतिमाएं लेकर मंदिर तक, उस कल्याण मंडपम तक लेकर आते थे। At bedtime, his father and grandmother told the children stories from the Ramayana and those of Prophet Muhammad। और बेड टाइम स्टोरीज भी अब्दुल कलाम के और उसके जो बाकी ब्रदर सिस्टर्स थे या फिर और बच्चे थे, उनके पेरेंट्स, उनकी दादी माँ उनको स्टोरीज, रामायण की कहानियाँ और पैगंबर मोहम्मद के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे। इट मीन्स उस टाइम में हिंदू मुस्लिम धर्म के डिफरेंस के बारे में बच्चों को, उनको कुछ भी इतना नहीं पता था और ना ही इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो अब्दुल कलाम के बचपन में उसको सभी धर्मों को, दोनों धर्मों, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं बताया गया था। लेट अस सी द नेक्स्ट पेज। Then Abdul Kalam tells about his new teachers' communal behavior। उनके स्कूल में जब नए टीचर आए थे, जब अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे, एक नए टीचर आए, कलाम जो कि अपने फ्रेंड रामानंद शास्त्री के साथ फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, तो न्यू टीचर ने ये टॉलरेट नहीं किया कि एक मुस्लिम बॉय एक ब्राह्मण बॉय के साथ, रामानंद शास्त्री के साथ फर्स्ट रो में बैठा हो।
तो न्यू टीचर ने इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया और उन्होंने अब्दुल कलाम को बोला कि वो जाके बैक बेंच पे बैठे। Abdul Kalam and Ramanand Shastri became sad. Later, Shastri's father reprimanded the teacher for his communal behavior and told him either to mend his ways or to leave the island. और अब्दुल कलाम के रामानंद शास्त्री के फादर ने जो न्यू टीचर थे उनको बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली बोल दिया कि या तो वो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करें, अपने तौर तरीके बदलें या फिर उस आइलैंड को ही छोड़कर चले जाएं। फाइनली द एरिंग टीचर, एरिंग मीन्स जो कि गलती कर रहा था, एरर थी, गलती कर रहे थे वो टीचर। द एरिंग टीचर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, और टीचर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांग ली। देन अब्दुल कलाम टेल्स अबाउट हिज साइंस टीचर जो कि एक ट्रू रिफॉर्मर थे, सुधार करने वाले। सुधार मीन्स जो समाज में जो भी बुराइयां उस टाइम पे नज़र आती थी तो वो उनके अगेंस्ट होते थे, सुधार करना चाहते थे उसमें। तो ये टीचर उनके साइंस टीचर थे। अब्दुल कलाम साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज अ हाई कास्ट ब्राह्मण, वो भी एक ब्राह्मण थे, पक्के ब्राह्मण थे, ऊंची जाति के। बट ही डिड नॉट बिलीव इन सोशल एंड रिलीजियस बैरियर्स, लेकिन वो सोशल और रिलीजियस बैरियर्स में बिलीव नहीं करते थे। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हिज होम फॉर अ मील, खाने के लिए बुलाया अब्दुल कलाम को। बट अय्यर served Abdul Kalam to meal. Ayyer's wife was very conservative. She refused to serve a Muslim boy in her kitchen. Conservative means बहुत ही पुराने ख्यालात की थी। अय्यर की वाइफ जो थी वो अपने धर्म में विश्वास रखती थी और बहुत पुराने ख्यालात थे, उसके विचार थे, तो उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं अपने किचन में किसी मुस्लिम बॉय को खाना नहीं खिलाऊंगी। बट अय्यर सर्व्ड कलाम विद हिज ओन हैंड्स, और अय्यर ने इस बात पर अपने आप ही अब्दुल कलाम को अपने हाथों से ही भोजन सर्व किया। एंड sat down beside him to eat his meal, और अपने आप भी उसके पास ही बैठकर खाना खाने लगे। After meals, his teacher invited him again for dinner the next week. When Kalam went to his teacher's house the next week, his wife took him inside her kitchen and served him food with her own hands. Mr. Ayyer's goodness had reformed his wife too. अब पहले तो अब्दुल कलाम की मिस्टर अय्यर की वाइफ ने मना कर दिया था मुस्लिम बॉय को खाना खिलाने से, लेकिन नेक्स्ट वीक जब फिर से अब्दुल कलाम को उनके घर पे बुलाया गया खाना खाने के लिए, तो इस बार उनकी वाइफ ने खुद ही उनको अपने किचन में ले जाके सर्व किया। ये मिस्टर अय्यर की गुडनेस थी कि उनकी अपनी वाइफ भी रिफॉर्म्ड हो गई, उन्होंने अपने आप को सुधार लिया। देन अब्दुल कलाम टेल्स अबाउट हिज फादर्स परमिशन। स्कूल कंप्लीट हो गया था उनकी स्कूल एजुकेशन। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ओवर हो गई थी। एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट। अब इमिनेंट मीन्स अवश्यम भावी, अब होकर रहेगी। क्लियर हो गया था दैट इंडिया विल गेट फ्रीडम। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अ मूड ऑफ जॉय, खुशी की लहर दौड़ गई थी पूरे कंट्री में। अब्दुल कलाम आस्क्ड हिज फादर्स परमिशन टू गो एंड स्टडी एट रामनाथपुरम। हिज फादर ग्लैडली अलाउड हिम टू गो, और अब अब्दुल कलाम रामनाथपुरम नाम की जगह पे, रामनाथपुरम इस जगह पर जाकर हायर एजुकेशन लेना चाहते थे, तो अब्दुल कलाम के फादर ने उनको ग्लैडली खुशी खुशी परमिशन दे दी। फादर्स कंसोलेशन टू मदर। देन अब्दुल कलाम टेल्स अबाउट हिज फादर्स कंसोलेशन टू मदर। मदर वॉज नॉट विलिंग कि वो उनका बेटा इतनी दूर जाए, लेकिन उनके फादर ने उनकी मदर को समझाया। When Abdul Kalam was to leave to go to Ramanathapuram for further studies, his mother became sad. Kalam's father consoled her with his words of wisdom. कलाम के फादर ने words of wisdom, बुद्धिमानी से भरे हुए कुछ शब्द कहे अपनी वाइफ को। He gave reference from खलील जिब्रान, और उन्होंने खलील जिब्रान जो एक मुस्लिम बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनकी एक लाइन को उन्होंने रिपीट किया अपनी वाइफ के सामने। खलील जिब्रान की एक कथन को कहा।
He told her that the children were not theirs. और खलील जिब्रान के जो वर्ड्स थे उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कहा अपनी वाइफ को कि ये जो बच्चे हैं ये हमारे नहीं हैं. They were the sons and daughters of life's longing for itself. ये जीवन की इच्छा के बच्चे हैं, ये इनका अपना जीवन है, इनको अपनी इच्छा से जीने दिया जाना चाहिए. They were sons of daughters of life's longing for itself. He also told that their thoughts were their own. और उन्होंने ये भी समझाया कि इन बच्चों के विचार उनके अपने हैं, हम उनको बहुत टाइम तक बांध कर नहीं रख सकते, उन्हें भी अपने तरह से जीवन जीने का हक देना चाहिए. हम उनको अपने जन्म दे सकते हैं और अपने इच्छाएं बता सकते हैं, अपने विचार बता सकते हैं, लेकिन अपने विचारों को, अपने थॉट्स को उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते. तो उनके अपने विचार होते हैं. इस तरह से अब्दुल कलाम के फादर ने अपनी वाइफ को समझाया और अब्दुल कलाम को हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने के लिए परमिशन दी.